this bread of life for us. Yes, Lord. As we come to you under your shed blood. Amen. In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer for your glory under your shed blood. Amen. Amen. You all can be seated. आप सब बैठ सकते हैं. God really bless you all. खुदावन आप सबको बरकत दें. And a shalom to the bride of Christ. शलोम मसीह की दुल्हन को. God really bless. We had a wonderful message today morning. खुदावन वास्तविकता में बरकत दे. हमारा बहुत ही अद्भुत संदेश था सुबह. Amen. Spread your tent. अपने तंबू को और बढ़ा. Amen. Your tent. अपने तंबू को, अपने टेंट को बढ़ा. Amen. Amen. Your place which has been provided for you. वो स्थान जो तुझे दिया गया है, मुहैया किया गया है. And enlarge means getting to higher faith. और enlarge का मतलब है कि एक उच्च कोटि के विश्वास पे पहुंचना. In other words, get ready for more blessings. दूसरे शब्दों में और अधिक बरकतों के लिए तैयार होना. Amen. Amen. I'm seeing Brother Joseph. मैं भाई जोसेफ को देख रहा हूँ. Yeah, God bless him. खुदावन उन्हें बरकत दे. And he is with us and we are going to use him a little more if he'll permit us. और वो हमारे साथ हैं और हम उन्हें और अधिक इस्तेमाल करेंगे अगर वो हमें अनुमति दें. Amen. Because I think coming week he's leaving. क्योंकि मैं सोचता हूँ आने वाले हफ्ते वो जा रहे हैं वापस. But God bless our precious brother Joseph. और खुदावन हमारे बहुमूल्य भाई जोसेफ को बरकत दें. Who is with us with his family. जो हमारे साथ अपने परिवार के साथ रहे. Amen. आमीन. And we are very happy to have all of you. I think our brother is there from Andhra somewhere. He's come. और एक भाई हैं जो कि आंध्रा से भी आए हैं. Okay, brother. God bless you. खुदावन आपको बरकत दे भाई. So he's come to attend the fellowship. तो वो हमारे साथ संगति करने आए हैं. Amen. आमीन. Now, I'll give you a small background of this message which I'm going to share today evening. अब मैं एक थोड़ी भूमिका दूंगा उस संदेश के लिए जो कि मैं आज शाम रखूंगा. Before we go into the communion service. इससे पहले कि हम प्रभु भोज की सभा में जाएं. The first thing is. पहली चीज ये है. Yesterday was 15th August. कल 15 अगस्त था. And right in front of my house is a park. ठीक मेरे घर के सामने एक पार्क है. And faithful Indians. और बड़े ही निष्ठावान विश्वास योग्य भारतीय. They were unfurling the flag and I mean that's wonderful. वो तिरंगा फहरा रहे थे और बहुत अच्छा है ये. And chanting their slogans. और अपने अपने नारों को बोल रहे थे. And they were having celebrations. और बड़ा ही वो उत्सव मना रहे थे. I was a little tired, so I got up a little late. So at that point of time, I was doing my prayer. तो मैं थोड़ा थका हुआ था तो मैं थोड़ा लेट उठा और उस खास समय में अभी अपनी प्रार्थना कर रहा था. So a thought came to me. तो एक विचार मेरे पास आया. Let's see what the prophet preached on 15th August. आइए देखते हैं कि नबी ने क्या प्रचार किया 15 अगस्त के रोज. So I landed on a message. He preached in 965. तो मैं उस संदेश पे पहुंचा जो उन्होंने 1965 में प्रचार किया. And knoweth it not. और वे नहीं जानते. Amen. And that's a 15th August message. और वो 15 अगस्त का संदेश है. So as I was hearing that message, तो जैसे मैं उस संदेश को सुन रहा था, Brother Branham said, let's turn to Colossians. भाई ब्रैनम कहते हैं आइए हम कुलुसियों को खोलते हैं. So I opened Colossians and I started reading it. तो मैंने कुलुसियों को खोला और उसको पढ़ना चालू किया. Because he is explaining the address to the Laodicean. तो वो उस लाउदीकिया के लिए जो संबोधन है उसे समझा रहे हैं. And we are going to also see it today. आज हम उसे भी देखेंगे. In the context we have. उस संदर्भ में होके जो हमारा है. And see where we are today. और देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं आज. And I read it. और मैंने उसे पढ़ा. So in the evening, तो शाम को I went to my brother Nischal's house. मैं अपने भाई निश्चल के घर गया. There was a small program. एक छोटा प्रोग्राम था. And one brother said, brother, why don't we just end up with a small worship and pray? और एक भाई ने कहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं कि हम एक छोटी वर्शिप करें और प्रार्थना के साथ खत्म करें. Fine. So we sang a song. ठीक है. तो हमने गीत गाया. So it was fresh in my mind from the morning. तो सुबह से मेरे दिमाग में ये ताजा था. So I said, let's turn to Colossians. तो मैंने कहा कि आइए हम कुलसियों खोलेंगे. So for 15 minutes, लगभग 15 मिनट के लिए I put a small thought. मैंने एक छोटा विचार रखा.
closed the Bible, बाइबल को बंद किया and had a final prayer और एक अंतिम प्रार्थना की and left. और चला गया। So I, my wife, and my sons were going somewhere. तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे जो हैं कहीं जा रहे थे। Now this is after I had taken that meeting. अब ये तब है जब मैंने उस मीटिंग को ले लिया। As I was driving along the way, comes the phone of Brother Richard. जैसे मैं रास्ते में जा रहा था और रास्ते में जाते वक्त ड्राइव करते हुए भाई रिचर्ड का फोन आता है। Brother, praise the Lord, something happened today in my prayer. भाई प्रेज लॉर्ड, कुछ ऐसा खास घटा मेरी प्रार्थना के दौरान। God bless our precious brother, खुदावन हमारे बहुमूल्य भाई को बरकत दें, because he's taken a lot of burdens as far as prayers are concerned. क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बोझ लिया है जहां तक कि प्रार्थना का सवाल है। And he fervently prays for the whole church. और वो कलीसिया के लिए बड़ी लौ लगा के प्रार्थना करते हैं। Amen. So God bless this brother. तो खुदावन हमारे इस भाई को बरकत दें। Amen. So yesterday night, तो कल yesterday's, I mean, if we should call it, should be Saturday. It'll be Friday, Saturday night, that period. मैं ये कहूँगा फ्राइडे और सैटरडे की रात के बीच का हिस्सा, वो वाला हिस्सा, While he was praying, जब वो प्रार्थना कर रहे थे and then he sees this. और फिर वो ये देखते हैं, I think it was a dream. मैं सोचता हूँ ये ख्वाब था, And then he sees that a door opens और वो देखते हैं कि एक द्वार खुलता है and I am entering the door और मैं उस द्वार में से प्रवेश कर रहा हूँ and I pat him. और मैं उनको थपथपाता हूँ। I am saying, Richard, मैं कहता हूँ रिचर्ड, read the book of Colossians. कुलसियों की पत्री पढ़ो। Now I'm hearing Brother Richard, अब मैं भाई रिचर्ड को सुन रहा हूँ and I've already taken a message in my brother's house. और मैंने पहले से अपने भाई के घर में उस पे एक संदेश ले लिया। And after I have preached it, और जब it was मैं a 15 minutes small thought. मैंने जब उसको प्रचार किया, बस 15 मिनट का था, छोटा विचार रखा था। And after that, when I'm going in my car, और जब मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, comes the phone of Brother Richard. भाई रिचर्ड का फिर फोन आता है, Brother, something happened today. भाई आज कुछ हो गया। And while I was praying, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, how you came, कैसे आप आए entered the door and said, और दरवाजे से अंदर घुसे और कहा, read the book of Colossians. कुलसियों की पुस्तक पढ़। I said, I've just preached it. मैंने कहा मैंने तो इस पे अभी हाल ही में प्रचार किया है। God was seconding something. खुदावन किसी बात की पुष्टि कर रहे थे। Amen. आमीन। And then I knew और तब मैं जान गया, there is something, and I was telling Brother Richard, और मैं भाई रिचर्ड को ये बता रहा था, there's something in this book, brother, कुछ है इस पुस्तक में मेरे भाई that you need to understand. जो आपको समझना जरूरी है। So he got up from his dream तो वो अपने ख्वाब से उठे and read the entire epistle of Colossians. और पूरी पत्री कुलसियों की पढ़ी उन्होंने। Then he's sharing this with me. फिर वो इस बात को मेरे साथ रख रहे हैं। Even today afternoon he shared it. यहाँ तक कि दोपहर में भी उन्होंने रखा इस बात को। And I said, brother, that's where I was yesterday. और मैंने कहा भाई यही वो जगह थी जहां पर मैं कल था, In the book of Colossians. कुलसियों की पत्री में। So here we are tonight तो आज रात्रि यहाँ पर हम हैं in the book of Colossians. कुलसियों की पुस्तक में। Amen. There's something here कुछ है यहाँ पर which is there for the body of Christ, जो कि है मसीह की देह के लिए, for the bride of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए। And Brother Branham is sharing it in a message. और भाई ब्रैनम उसे एक संदेश में रख रहे हैं। He shared it in Christ, the mystery of God revealed. उन्होंने उसे रखा मसीह खुदा का भेद प्रकट में, And he's sharing it in and knoweth it not. और उन्होंने इसको रखा और वे नहीं जानते वाला Now संदेश you know में। what's in and knoweth it not. अब आप जानते हैं कि और वे नहीं जानते वाले संदेश में क्या है। It's ending with Olin Walker's dream, ये खत्म होता है ओरलन वॉकर के ख्वाब से, where Brother Branham is riding on a white horse. जहां पर भाई ब्रैनम एक श्वेत घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। I'll ride this trail once more. मैं इस सवारी को फिर से कसूंगा। Amen. आमीन। It's that same message ये वही संदेश है where you find that he's sharing Colossians. जहां पर वो रख रहे हैं, आप पाते हैं कुलसियों को भी। Something is there here in Colossians कुछ है यहाँ पर जो कि कुलसियों में है, which is tied to your and my rapture. जो कि जुड़ा हुआ है आपके और मेरे रैप्चर से। There's some mystery laying here कोई भेद है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, which has to do with the bride of Lord Jesus Christ. जिसका संबंध मसीह यीशु की दुल्हन से है। So may God give me grace
तो काश खुदा मुझे अनुग्रह दें to share a small part, ताकि मैं छोटा हिस्सा रख पाऊं, because we can't finish the whole book, क्योंकि हम पूरी पुस्तक को खत्म नहीं कर सकते, but we are going to share a few thoughts पर हम कुछ विचारों को रखेंगे as the prophet shared it. जैसे नबी ने उन्हें रखा है। And when the prophet shared it, he said certain things, और जब नबी ने उन्हें रखा तो उन्होंने कुछ खास चीजों को वहां कहा, and we are going to see what he said there. और हम देखेंगे उन्होंने वहां पर क्या कहा है। Amen. आमीन। Can you say praise the Lord? क्या आप खुदा की तारीफ बोल सकते हैं? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। That's where I started in verse 12. ये वो जगह है जहां पर मैंने शुरू किया, Giving thanks unto the Father. और पिता का धन्यवाद करते रहो। We should always be thankful. हमेशा हमें धन्यवादित होना चाहिए। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Are you thankful tonight? क्या आज रात्रि आप धन्यवादित हैं? आमीन। Amen. आमीन। Thankful to the Father, पिता का धन्यवाद which करते hath रहो, made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। There is an inheritance in light. एक मिरास है जो कि ज्योति में पाई जाती है। God is light, खुदा ज्योति है and in him there is no darkness at all. और उनमें कोई अंधकार नहीं है। And saints who are in light, और वे पवित्र लोग जो कि ज्योति में हैं, what is the light? वो ज्योति क्या है? It's the light of his glory. ये उनकी महिमा की ज्योति है। Let there be light. उजियाला हो। We're not talking about this 6,000 years back, हम इस 6000 साल पहले की बात नहीं कर रहे, but we are talking about the supernatural light, पर हम बात करें उस अलौकिक रोशनी की which is God. जो कि खुदा स्वयं है। And we are partakers of that inheritance. और हम उस मिरास के सहभागी हैं। So we have an inheritance in God. तो हमारे पास एक मिरास है खुदा में, Because we have been given that inheritance, क्योंकि हमें ये मिरास दी गई है। let us be thankful. आइए हम धन्यवादी हों। आमेन। Are you thankful? क्या आप धन्यवादी हैं? आमेन। Think deep today. आज गहरा सोचें। You have an inheritance in God. आपकी मिरास है खुदा में। You know what Brother Branham said आप जानते हैं क्या भाई ब्रह्म ने कहा? when he was looking at Oral Roberts' big building जब वो ओरल रॉबर्ट की बड़ी बिल्डिंग को देख रहे थे, यस, and how millions of dollars went on to make that building. और कैसे 10 लाख डॉलर लगे ताकि उस बड़ी इमारत को खड़ा किया जाए। And he said, here I am with the true message. और वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं हूँ जो कि सच्चे संदेश के साथ हूँ। Just a small old shack room with a small old typewriter. छोटा सा कमरा है कोने में जिसमें एक छोटा टाइपराइटर रखा है। Then the Lord said, तब प्रभु ने कहा, look above. ऊपर देख। And then the Lord said, पर फिर प्रभु ने कहा, I am your portion. मैं तेरा भाग हूँ। Think if God is our portion, what else do we need? सोच के देखिए, अगर खुदावंद ही हमारा भाग हो तो हमें और किसकी जरूरत है? Do we need anything else? क्या हमें किसी और चीज की जरूरत है? That great, supreme God वो महान सर्वोच्च खुदा is our inheritance. वो हमारी मिरास है। Your inheritance is in Christ, आपकी मिरास मसीह में है, in God, खुदा में है, in that supernatural. उस अलौकिक में है। Then what else do we need? तो फिर और हमें क्या चाहिए? Let us be thankful, आइए हम धन्यवादी हों, which has made us partakers जिसने हमें सहभागी बनाया है of that inheritance उस मिरास का, of the saints in light, उन पवित्र लोगों का के साथ। के साथ जो कि ज्योति में है, who hath delivered us from the power of darkness. जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। Listen, boy, सुनिए लड़के, if he has delivered you from darkness, अगर उन्होंने आपको अंधकार से छुड़ाया है, listen, young girl, सुनिए जवान लड़की, my brother, my sister, मेरे भाई मेरी बहन, has he delivered you from that power of darkness? क्या उन्होंने आपको उस अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ाया है? There are still many who are still in darkness. अभी भी कई हैं जो कि अभी भी अंधकार में हैं। Drugs, ड्रग में, नशीले तत्व में, alcohol, शराब में cigarettes, और सिगरेट में, धूम्रपान में, prostitution, वेश्यावृत्ति में, vulgarity, pornography. अश्लीलता में और ऐसे अश्लील चलचित्रों में, They are not delivered from that. वो उससे छूट नहीं पाए, छुड़ाए नहीं जा पाए। As we were talking, brother was mentioning about somebody.
जैसे हम बात कर रहे थे, भाई हमारे भाई उसका उल्लेख दे रहे थे किसी के बारे में, Every second person in England is sold to adultery or something. हर एक दूसरा जन जो इंग्लैंड में है वो व्यभिचार या किसी और ऐसी चीज के लिए बिका हुआ है। And think of this, और सोच के देखिए इसके बारे में, such a corrupt society. ऐसी सड़ी हुई और बुरी स्थिति वाली एक समाज। Brother Branham said, England, the most apostate nation. भाई ब्रह्म ने बोला इंग्लैंड सबसे ज्यादा अंधकार में देश है, Because they rejected the message of John Wesley. क्योंकि उन्होंने जॉन वेस्ली के संदेश का तिरस्कार किया। So it's utter darkness. तो बिल्कुल अंधकार है वहां पर। You see churches in, I mean, if you take the entire Europe, I'm not talking about Germany. अगर आप मैं केवल जर्मनी की बात नहीं कर रहा, पूरे यूरोप महाद्वीप को ले, Besides a few groups who are believing the message, कुछ थोड़े झुंडों के अलावा जो कि संदेश पे विश्वास रखते हैं, it's darkness. वहां अंधियारा है। America, it's darkness. अमेरिका में अंधियारा है। And in this country, we are seeing that darkness moving. और यहाँ पर इस देश में भी हम उस अंधियारे को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। All these big, what do you call centers and night jobs and these places. ये बड़े बड़े जो कॉल सेंटर हैं और रात की जॉब्स हैं और ये तमाम जगहें, People sold. Their marriages are broke, in fact. Extramarital affairs are just now common. लोग बिके हुए हैं और उनकी शादियां टूटी हुई हैं, और मैं कहूंगा विवाह के अलावा संबंध जो है बहुत अब सामान्य बात हो गई है। What we used to read in the message जो कुछ हम संदेश में पढ़ते थे few years back कुछ साल पहले, and think that this is the story of America. सोचते थे कि ये कहानी तो अमेरिका की है, But today is the story of even this country. पर आज ये कहानी यहाँ तक कि इस देश की भी है। Sold. बिके हुए हैं, Sold to vulgarity. अश्लीलता के लिए बिके हुए हैं, Sold to drugs. ड्रग्स के लिए बिके हुए हैं। What about the Air India case? उस एयर इंडिया के केस के बारे में क्या कहेंगे? Pilot taking marijuana. जो पायलट है वो मैरिजुआना ले रहा है, And how now it has become compulsory that every pilot has to go through a test. और कैसे अब ये बहुत ये जरूरी हो गया, आवश्यक हो गया कि हर एक पायलट की पहले जांच होगी। Why? क्यों? Everywhere you find drugs, women, popularity, fame, crime. Everywhere it is there. हर जगह आप पाएंगे ये प्रसिद्धि, ये ड्रग्स हैं, ये स्त्री है और ये अपराध है, और ये सारी चीजें बहुत जगह हैं। As Paul said, spiritual wickedness in high places. जैसे पौलुस ने बोला आत्मिक जो दुष्टता पाई जाती है ऊंचे स्थानों में। So brother, it's a corrupt world. तो भाई ये एक सड़ा हुआ दुनिया है, It's an insane age. ये एक पागल दुनिया है। But thank God. तो खुदा का धन्यवाद He हो। said, thank the Father. उन्होंने बोला कि हम पिता का धन्यवाद करते हैं, He has delivered us. उन्होंने हमें छुड़ाया है। I'm asking you, young boy, मैं आपसे जवान लड़के पूछता हूँ, are you delivered? क्या आप छुड़ाए गए हैं? Can you say, I am delivered? क्या आप कह सकते हैं मैं छुड़ाया गया हूँ? I'm delivered from the shackles of this mobile. मैं इस मोबाइल की जंजीरों से छुड़ाया जा चुका हूँ। I'm delivered from the shackles of pornography. मैं अश्लील चलचित्रों की, पोर्नोग्राफी की के सांकलों से छुड़ाया गया हूँ। I'm delivered from the power of rock music. मैं रॉक म्यूजिक की सामर्थ्य से छुड़ाया जा चुका हूँ। Amen. And I sing heavenly music. और मैं आमीन और स्वर्गीय गीत गाता हूँ। Have you been delivered? क्या आप छुड़ाए जा चुके हैं? Amen. Deliverance is a big thing. Deliverance is a big thing. छुड़ाया जाना तो एक बहुत बड़ी बात है। You can breathe fresh air, brother. आप ऊंची ठंडी सांस ले सकते हैं मेरे भाई। You are 1 in a million आप 10 लाख में से एक हैं who has been delivered. जो कि छुड़ाया जा चुका है। While you were getting delivered, जब आप छुड़ाए जा रहे थे, your friends were dying in darkness. आपके मित्र अंधकार में मर रहे थे। What about your office? आपके ऑफिस के बारे में क्या? What is the office culture today? ऑफिस का कल्चर आजकल क्या है? Nonsense. बकवास है। School culture. स्कूल कल्चर Nonsense. सब बकवास है। Schools in our time were still better. यस, स्कूल हमारे समय तो भी बेहतर थे। हमारे टाइम पे अगर किसी लड़के को लड़की के साथ देख लिया तो चपत मारते थे टीचर्स। ऐसा चपत मारा खींच के कि फिर भूल गया वो, फिर सारी हीरोपंती। उन्हें ये सब यहाँ स्कूल में नहीं चलेंगे, आप पढ़ने आते हो, माँ बाप तुम्हारे पैसा देते हो, तुम ये करने आते हो यहाँ पे स्कूल में। You see, there was some fear. आप पाएंगे एक डर था। But what about today? पर आज के बारे में क्या? Drugs, ड्रग्स हैं, vaping, वेपिंग है, yes, e-cigarettes, हाँ, ई सिगरेट है, and all such kinds of nonsenses. ये तमाम किस्म की बकवासें हैं। Passing filthy notes. गंदे गंदे
मैसेज पास करना, all that was in American schools are now here in Indian schools. ये सब कुछ जो कि अमेरिकी स्कूलों में था अब हिंदुस्तानी स्कूलों में भी आ गया। It's all nothing but filth. ये कुछ और नहीं परंतु सब गंदगी है, As बकवास है। Isaiah says, जैसा यशायाह कहता है, putrefied sores. ऐसे घाव जो कि बिल्कुल सड़ चुके हैं, That's the condition of the nations. ये है स्थिति देशों की। But then we, परंतु हम who has been delivered जो कि छुड़ाए गए हैं from the power of darkness अंधकार की शक्ति से, and hath translated us, और उन्होंने हमें रूपांतरित किया है, we are transformed. हम रूपांतरित हुए हैं, We are transformed by a transforming power हम एक रूपांतरण की सामर्थ के द्वारा रूपांतरित किए गए हैं into the kingdom of his dear son. उसके प्रिय पुत्र के राज में। Once we who looked like walking devils, एक समय तो यह था चलते फिरते शैतान दिखते थे, but today the image of Christ. पर आज मसीह की प्रतिमा है। Hallelujah. हालेलुया। By his power of transformation. उनकी रूपांतरण की सामर्थ के द्वारा What a power we have. क्या सामर्थ हमारे पास है। And this is not your work. और ये आपका काम नहीं This है, is not my work. ये मेरा काम नहीं है, This is his miracle ये उनका आश्चर्य कर्म है which he has done in your and my life. जिसे उन्होंने आपके और मेरे जीवन में किया है। You could be in a pub somewhere tonight. हो सकता है आप एक मैखाने में आज रात्रि होते, Sunday is a weekend. संडे तो हफ्ते का अंत होता है। Of course, the first day of the week for us. हाँ बेशक हमारे लिए हफ्ते की शुरुआत है, But for the world, it's a weekend. और दुनिया के लिए तो ये वीकेंड है। It's a time of frolic, festival, ये समय है मजे करने का, मौज मस्ती करने का, picnics, पिकनिक मनाने का, and music and do whatever. और म्यूजिक और तमाम वो चीजें करी जाएं। But you are not there. पर आप वहाँ नहीं हैं, You are here in the house of the Lord. अब यहाँ खुदा के भवन में पाए जाते हैं। Isn't it a matter to say thank you, Jesus? क्या है ये कारण नहीं खुदावन यीशु को धन्यवाद देने का? Amen. Amen. Brother, deliverance is a big thing. भाई छुड़ौती एक महान चीज है, And our God can deliver. और हमारे खुदावन छुड़ा सकते हैं। Any situation is not an impossible situation. कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। No matter how stooped down in sin you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना आप गिरे हुए पाप में हो, God is there to take you out. खुदावन वहाँ है आपको बाहर निकालने के लिए। Amen. And he has. और उन्होंने निकाला है, That's why we need to be thankful. इसलिए जरूरी है कि हम धन्यवादी हों। Translated us हमें रूपांतरित किया है into the kingdom of his dear son. अपने प्रिय पुत्र के राज में, And then he starts explaining this dear son. और तब वो समझाना चालू करते हैं ये प्रिय पुत्र कौन है। So we are now focusing on that son तो अब हम केंद्रित हैं उस पुत्र पे, in whom we have redemption जिसमें हमें छुटकारा मिलता है through his blood, उसके लहू के द्वारा, even the forgiveness of sins. हाँ पापों की क्षमा भी। You know, brother, these lines sound simple, but they are not. भाई ये पंक्तियां तो बड़ी साधारण लगेंगी पर ये है नहीं। There are millions who are not forgiven. यस, दसियों लाख है जिन्हें माफी नहीं मिली, There are millions who are not redeemed. दसियों लाख है जिन्हें छुटकारा नहीं मिला, But you have been redeemed. पर आप छुड़ाए गए हैं। That blood was effective in your and my life. वो लहू आपके और जीवन, आपके और मेरे जीवन में सक्रिय हुआ है। When I see that blood, जब मैं उस लहू को देखूंगा, I will pass over you. मैं तुम पर लांग जाऊंगा। There were millions died in Egypt, brother. दसियों लाख थे जो कि मिस्र देश में मर गए मेरे भाई। That Jewish firstborn वो यहूदी पहलौठ है who was under the lamb's blood. जो कि मेमने के लहू के नीचे थे। He could say, I have a lamb. वो ये कह सकता था मेरे पास एक मेमना है, And because I have a lamb, और क्योंकि मेरे पास एक मेमना है, I have a shed blood. मेरे पास एक बहाया हुआ लहू है, And under that shed blood, I am saved. और उस बहाए हुए लहू के नीचे मैं बच गया हूँ, Saved from the wrath of God. बच गया हूँ खुदा के क्रोध से। Amen. आमीन। Forgiveness of sins. पापों की माफी, Redemption through his blood. छुटकारा उनके लहू के द्वारा। Oh, we can just go on and on. ओ हम बस इसमें चलते ही रह सकते And हैं। now he starts explaining this son. और वो समझाना चालू करते हैं इस पुत्र को, Who is the image of the invisible God. वो तो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप है, The firstborn of every creature. और सारी सृष्टि में पहलौठा है। Remember, brother, याद रखिए भाई,
if he just came 2000 years back अगर वो ठीक 2000 साल पहले ही आए बस, and didn't have any existence before, और उनका कोई वजूद उससे पहले नहीं था, he cannot be the firstborn of every creature. तो वो सृष्टि में पहलौठा नहीं हो सकते। To be the firstborn of every creature, हर एक सृष्टि में पहलौठा होने के लिए he has to be before creation was. जरूरी है कि इससे पहले कोई सृष्टि हो, वो हो। In John 17 when he's praying, यूहन्ना 17 में जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, he is clearly saying, वो स्पष्ट रीति से कह रहे हैं, Father, glorify thou the Son पिता पुत्र की महिमा करें with the glory I had with you उस महिमा के अनुसार जो मेरी थी आपके साथ before the foundation of the world. जगत की नींव रखने से पहले। Since that foundation of the world, उस जगत की नींव रखने से के समय से, so it's very clear from that prayer. तो बड़ा स्पष्ट है उस प्रार्थना के द्वारा He didn't just come through Mary 2000 years back. कि वो मात्र मरियम के द्वारा 2000 साल पहले ही नहीं आए, That was his flesh form. वो तो उनका शरीर वाला रूप था, But he existed before the flesh form in another form. पर वो इस शरीर वाले रूप से पहले एक और रूप में विद्यमान थे। Today we call it the theophany form. आज हम उसे थियोफनी का रूप कहते हैं, Today we call it the logos. आज हम उसे लोगोस कहते हैं। Before the foundation of the world. जगत की नींव रखने से पहले, Before he became Jesus. इससे पहले कि वो यीशु बने, He was the logos. वो लोगोस थे, He was the angel of the Lord. वो प्रभु का दूत थे, He was the theophany of God. वो खुदा का थियोफनी, खुदा की थियोफनी थे, He was the visible form of the invisible spirit. वो अदृश्य आत्मा के दिखने वाले दृश्य वाले रूप थे। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Amen. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Amen. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। Think, सोचिए, all things were created by him सारी वस्तुएं उनके द्वारा सिरजी गई and for him. और उनके लिए सिरजी गई। Every created thing is created for him. हर एक सिरजीवी वस्तु उनके लिए सिरजी गई है। By him were all things created. उनके द्वारा सब कुछ सिरजा गया, Whether they are things in heaven, चाहे वो वस्तुएं स्वर्ग की हो। what is in heaven? स्वर्ग में क्या है? Angels, दूत, the four beasts. चार जानदार। We are not going to take 24 elders for a minute हम 24 प्राचीन नहीं लेंगे एक मिनट के लिए, because they come from the humans. क्योंकि वो तो इंसानों में से आते हैं। You know the message. आप संदेश जानते हैं, But we'll talk about the four beasts. पर हम बात करेंगे चार जानदारों की, We'll talk about the angels. हम बात करेंगे दूतों की, And we'll talk about that heavenly realm itself where God dwells. और हम बात करेंगे वो स्वर्गीय याम जहां पर स्वयं खुदावन रहते हैं। All things were created by him. सारी वस्तुएं उनके द्वारा सिरजी गई। Beasts were created by him. जो Beasts. जानदार, Yes. जानदार उनके द्वारा सिरजे गए। Angels were created by him दूत जो है उनके द्वारा सिरजे गए and for him. और उनके लिए सिरजे गए। What for? किसके लिए? To worship him. ताकि उनकी उपासना करें। Can you say amen to that? क्या आप आमीन कह सकते हैं इसके लिए? And they do worship. और वो उपासना करते हैं। But then came a fall. पर फिर आई एक गिरावट। Let's read further. And visible, invisible, आइए आगे पढ़ेंगे। और दिखने वाला और अनदेखा, whether they be thrones चाहे सिंहासन हो or dominions या प्रभुताएं हो or principalities. या प्रधानताएं हो Hallelujah. Or powers. या अधिकार हो, All things were created by him. सारी वस्तुएं उन्हीं के द्वारा सिरजी गई। Babylon was created by him. बाबुल उनके द्वारा सिरजा गया। Amen. For him. उनके लिए। India was created by him. ये भारत जो है उनके द्वारा सिरजा गया And for him. और उनके लिए सिरजा गया। Amen. Now this is something you need to understand. अब ये कुछ है जो आपको समझना जरूरी है। Without his creation there can be no throne or principality. उनके सृष्टि के बगैर कोई सिंहासन या प्रधानताएं नहीं हो सकती। We say popular vote voted that minister in. हम ये कहते हैं कि जो बहुमत था जिसका कारण वो जो मिनिस्टर है वो आ गया कुर्सी पे। मंत्री आ गया कुर्सी पे. यस।
And he became the prime minister, president maybe. और वो या तो राष्ट्रपति बन गया या प्रधानमंत्री बन गया, Until Logos decides, जब तक कि लोगोस फैसला ना करें there can be no prime minister or president. कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हो सकता। And remember this one line, और एक पंक्ति को याद रखें, by him उनके द्वारा and for him. और उनके लिए। So there is some glory he's seeking when he's bringing a particular government. आमेन। तो वो महिमा चाह रहे हैं जब वो एक खास सरकार को लेके आते हैं। Remember, Brother Branham said, याद रखिए भाई ब्रह्म ने कहा, right at the time of delivery of Christ, ठीक जब मसीह पैदा होने वाले थे, came a king एक राजा उठा whose name is Herod. जिसका नाम है हेरोदेस। And then how the Roman emperor passed a cruel law. और कैसे उस रोमी सम्राट ने एक बड़ा ही क्रूर कानून पास किया, Go back to your birthplace जाओ वापस अपनी जन्मभूमि पर and get your census done. और अपनी मर्दमशुमारी करो। So there was a place of that king also. तो वो स्थान था उस राजा का भी, Unless he had given that cruel order, जब तक कि उसने उस क्रूर कानून को ना दिया होता, Mary and Joseph would never go to Bethlehem. मरियम और यूसुफ कभी भी बैतलहम नहीं जाते। And if they wouldn't go to Bethlehem, और अगर वो बैतलहम नहीं जाते, how would the prophecy of Micah be fulfilled? आमेन, तो मीका की नबूवत कैसे पूरी होती? For Micah to be fulfilled, he brought a ruler. मीका को पूरा करवाने के लिए वो एक शासक को लेके आए। In a similar way, उसी रीति से when that squeeze comes, जब वो दबाव आता है, watch that third pull then. उस तीसरे खिंचाव को तब देखना, To bring that squeeze, उस दबाव को लाने के लिए he'll bring a particular prime minister. वो एक खास प्रधानमंत्री को लेके आएंगे, He'll bring a dominion. वो एक ऐसी प्रधानता को लेके आएंगे, He'll raise a beast वो एक पशु को खड़ा करेंगे which will trouble the woman. जो कि स्त्री को तंग करेगा, The red dragon spotting the water out. जो लालच करे वो पानी फेंकता है। But it is not for the destruction पर ये विनाश के लिए नहीं है of that elect, उस चुने हुए के, but for the glory of God. पर खुदा की महिमा के लिए। When the enemy comes in like a flood, जब दुश्मन बाढ़ की नहीं आता है, the Spirit of God खुदा का आत्मा raises a standard. एक झंडे को खड़ा करता है। So remember, तो याद रखिए, all things were created by Him सारी वस्तु उनके द्वारा सिरजी गई and for Him. और उनके लिए सिरजी गई। Let's think about ourselves. सोच के देखिए हमारे बारे में, We are created by Him हम उनके द्वारा सिरजे गए and for Him. और उनके लिए सिरजे गए। Then one thing is assured, तो फिर एक बात पक्की है, there's some kind of glory of Christ आमेन, किसी किस्म की महिमा है मसीह की, which has to be shown through our lives, जो कि जरूरी हमारे जीवनों से दिखाई दे, that by which He is glorified. जिसके द्वारा उनकी महिमा हो। And when we come to that part, और जब हम उस हिस्से पे आते हैं, oh, it's very glorious. ओह ये बहुत महिमा में होता है, His glory in us. उनकी महिमा हमारे अंदर। Why? क्यों? We are His attributes. हम उनके गुण हैं, We are His thoughts. हम उनके विचार हैं। There's certain thought He had for us. तो वे कुछ खास विचार थे जो हमारे लिए उनके पास थे, And because of those thoughts He had, और क्योंकि वो विचार उनके पास थे, He will achieve those thoughts in our lives. वो उन विचारों को पूरा करेंगे, प्राप्त करेंगे हमारे जीवनों That में। thought is His will. वो विचार उनकी इच्छा है, And His will is a perfect will. और उनकी इच्छा सिद्ध इच्छा है। We may walk in the permissive will for a long time, हो सकता है हम एक इजाजत वाली इच्छा में कई समय तक चलते रहें, but finally it glorifies His perfect will. और आखिरकार वो उनकी जो सिद्ध इच्छा है उसी की महिमा करता है। This body is not perfect will. ये शरीर जो है सिद्ध इच्छा नहीं है, This was a permissive will ये एक अनुमति वाली इच्छा थी, because it came by sex. क्योंकि ये सेक्स के द्वारा, यौन संबंध के द्वारा आई। Yet through this body, और तो भी इस देह में He'll bring a perfect will. वो अपनी सिद्ध इच्छा को लेके आएंगे, He shows His plan of redemption वो अपने छुटकारे की योजना को दिखाते हैं, and finally changes it to a glorified body, और आखिरकार उसे एक महिमा युक्त देह में बदल देते हैं, which is His image, जो कि उनकी स्वयं की समानता which है, is His perfect will. जो कि उनकी सिद्ध इच्छा है। All things सब वस्तुएं created by Him उनके द्वारा सिरजी गई and for Him. और उनके लिए सिरजी गई, And He is before all things, और वो सब वस्तुओं में प्रथम है, and by Him all things consist. और सब वस्तुएं उन्हीं में स्थिर रहती हैं। Let me share with you the background of this.
आइए मैं आपके सामने वो भूमिका रखूंगा इसकी। Why is the prophet going to the deity of Christ in Colossians? क्यों जो नबी हैं वो खुदायत्व के, मसीह की खुदायत्व में जा रहे हैं कुलसियों की पुस्तक में? He wants to preach and knoweth it not. वो प्रचार करना चाहते हैं और वे नहीं जानते। Revelation chapter 3. प्रकाश वाक्य 3 अध्याय, Just for a minute, please. 1 मिनट के लिए, And we are going to read verse 14. और हम 14वें आयत पढ़ेंगे। And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. लाउदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि की शुरुआत है, वो ये कहता है। Look the address he is giving to this rich, blind Laodicea. देखिए वो संबोधन जो वो दे रहे हैं इस धनी अंधी लाउदीकिया को। And you know this is the last age. और आप जानते हैं आखिरी युग है, And this is also the age of the rapture. और ये युग रैप्चर का भी है। There would be some from this age that will be transformed and taken like Enoch was. कुछ होंगे इस युग में जो कि रूपांतरित किए जाएंगे और हनोक की मानंद उठा लिए जाएंगे। Can you say amen to that? क्या आप आमीन कह सकते हैं इसके लिए? To such an age, ऐसे युग के लिए the address is, जो संबोधन है, these things saith the Amen, ये बातें वो कहता है जो आमीन है, the faithful and true witness, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, the beginning of the creation of God. और खुदा की सृष्टि की शुरुआत है। How did he become the beginning of the creation of God? कैसे वो खुदा की सृष्टि की शुरुआत बना? God becoming the beginning of the creation. खुदावन बन रहे हैं शुरुआत सृष्टि की। No man could interpret that. कोई मनुष्य इस बात का अनुवाद नहीं कर सकता But था। thank God for a prophet खुदा का धन्यवाद हो एक नबी के लिए, who interpreted this line. उन्होंने इस पंक्ति का अनुवाद किया। And what was the interpretation? और अनुवाद क्या था? When God became flesh जब खुदावन शरीर बने in the womb of a woman. एक स्त्री की कोख में। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? That was God becoming his own creation. ये था खुदावन अपनी सृष्टि बनते हुए, The beginning of that new creation. उस नई सृष्टि की शुरुआत By the spoken word, बोले वचन के द्वारा he took form उन्होंने रूप लिया and came through a woman. और एक स्त्री के माध्यम से आए। That was the creation of God. ये थी खुदा की सृष्टि। But that was creation, yet it was God. हाँ, जो कि जबकि वो सृष्टि थी तो भी वो खुदा ही थे। Because that flesh was the visible form. क्योंकि वो शरीर दिखने वाला रूप था। It was the word that had become flesh. ये वचन था जो कि शरीर बना था। And then the entire Godhead dwelt in him. और संपूर्ण खुदा उसमें वास कर रहा था। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं इसके लिए? So he was the image of the invisible God. तो वो प्रतिमा थे उस अदृश्य खुदा की। But why to give such an address to Laodiceans? पर ऐसा खास संबोधन क्यों दिया जाए लाउदीकियाई को? Could it be क्या ऐसा हो सकता है? Laodicea could be the age of new creation? लाउदीकिया वो युग हो नई सृष्टि का। Amen. Yes. I'm trying to take your thoughts somewhere. मैं आपके विचारों को कहीं ले जाना चाह रहा हूँ। Why is he addressing himself as Amen? क्यों वो अपना जो संबोधन दे रहे हैं वो आमीन के रूप में दे रहे हैं? Amen means absolute. आमीन का मतलब है परम सत्य। Amen means finality. आमीन का मतलब है निर्णायक। Finished. There can be no other higher decision. पूरा हुआ, खत्म, इससे ऊंचा कोई फैसला नहीं हो सकता। Why is he addressing himself as Amen to Laodicea? क्यों वो अपना संबोधन आमीन के रूप में दे रहे हैं लाउदीकिया को? As the faithful and true witness? जैसे विश्वास योग्य और सच्चे गवाह के रूप में। Oh, there are so many, and I think I've taken meetings on this. Yes, और मैं बहुत है इसमें, और मैंने सोचता हूँ कि मैंने इसमें मीटिंगें ली हैं। The beginning of the creation of God. खुदा की सृष्टि की शुरुआत। I know thy works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ Thou art neither cold nor hot. कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। I would thou art cold or hot. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। And then further it says, और फिर आगे वो कहते हैं, because thou sayest I am rich and increase with goods, क्योंकि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ and have need of nothing, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, and knowest not और ये नहीं जानता that thou art wretched कि तू अभागा है and miserable और तुच्छ है and poor और कंगाल है and blind और अंधा है and naked, और नंगा है and knowest not, और नहीं जानता, and knoweth it not. और वो ये नहीं जानता। Listen carefully. On these three words he spoke that message. उन 3 शब्दों पे उन्होंने संदेश को बोला। But before he came to this
category of people पर इससे पहले कि वो श्रेणी पर आए लोगों की who knew not. जो नहीं जानते थे, He talked about the initial verses उन्होंने उन शुरुआती आयतों के विषय में बात की which displays the Godhead of God. जो कि खुदा के गॉडहेड को, खुदायत्व को दिखाता है। That amen, वो आमीन, that faithful and true witness, वो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, and the beginning of the creation of God. और खुदा की सृष्टि की शुरुआत। It's then that he said, let's turn to Colossians. ये तब था जब उन्होंने बोला कि आइए हम कुलसियों को खोलें। Because Colossians, let's read one thing in there in Colossians. क्योंकि कुलसियों एक आयत पढ़े, एक हिस्सा पढ़े। There's a mystery hiding there. एक भेद है जो यहाँ छिपा हुआ है। Let me show you that mystery. आइए मैं आपको वो भेद दिखाऊंगा। The letter is to Colossians, yes. यस, जो पत्री है वो तो कुलसियों के लिए है। But let's read chapter 2, verse 1. पर आइए हम दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। Can you read it loudly, brother? मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लाउदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। So while he is writing to Colossians, तो जब वो कुलसियों को लिख रहे हैं, he is thinking of Laodicea. वो लाउदीकिया के बारे में सोच रहे हैं। Can you see something? क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? The Alpha messenger is writing to Colossians. अल्फा संदेशवाहक जो हैं वो कुलसियों को लिख रहे हैं। Then turn with me to the fourth chapter, फिर मेरे साथ निकाल लीजिए चौथा अध्याय, verse 16. उसकी 16वीं आयत। Yes. जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वो पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। He is connecting Colossians to Laodiceans. वो जोड़ रहे हैं कुलसियों को लौदीकिया के साथ। When this letter of Colossians is read amongst you, जब ये पत्री जो कि कुलसियों की है तुम्हारे बीच में पढ़ी जाए, let it be read by Laodiceans. ऐसा हो कि लाउदीकियाई के द्वारा भी पढ़ी जाए। Why should Laodiceans read it? लाउदीकियाई लोग क्यों पढ़े इसे? Because there is a rapturing faith. हालेलुया, क्योंकि इसमें एक उड़ाने वाला विश्वास है, There is a pull. एक खिंचाव है, There is a mystery एक भेद है which is in this epistle, जो कि इस पत्री में पाया जाता है, which is connected with the Laodicean age. जो कि लाउदीकिया युग से जुड़ा है। And the epistle that's read to Laodiceans. और वो जो पत्री लाउदीकियाओं के लिए लिखी गई है, अच्छा, आपको अजीब नहीं लगता? पौलुस कह रहे हैं वो पत्री जो मैंने लाउदीकिया को लिखी। Is it right? Read 16th verse again. जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो Yes. ऐसा करना कि लाउदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, Yes. और वो पत्र जो लाउदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। लाउदीकिया से भी कोई पत्र है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वो लाउदीकिया का पत्र भाई पौलुस का दर्ज है बाइबल में? मैं आपको कुछ सुझवा रहा हूं आज शाम। कुलुसियों, तुम्हारी पत्री तो है, और वो पत्री जो लाउदीकिया को लिखी वो तुम पढ़ना। वो पत्री जो लाउदीकिया की है क्या बाइबल में दर्ज है? तो क्या मैं कह सकता हूं ये लिखा नहीं गया? That is an unwritten part. वो एक अलिखित हिस्सा है Which was written but not put. जो लिखा था पर रखा नहीं गया। There was a cross put on it. उसमें एक कांटे का निशान लगा दिया गया। But let an epistle be read amongst you. पर ऐसा हो वो पत्री तुम्हारे बीच में पढ़ी जाए। But before you read that unwritten part, पर इससे पहले तुम वो लिखित हिस्सा पढ़ो। read this written part. इस लिखित हिस्से को पढ़ लो। This written part will bring you to the knowledge of that unwritten part. आमीन। ये लिखित हिस्सा तुम्हें उस अलिखित हिस्से के ज्ञान तक पहुंचा देगा। आइए चलें और देखें कि ये कैसे है। आमीन। Come back वापस आइए to chapter 1. पहले अध्याय में। So this is the epistle to Colossians read by Laodiceans. तो ये है पत्री कुलसियों की जो कि लाउदीकिया के द्वारा पढ़ी जा रही है। And he is before all things, और वो सब वस्तुएं प्रथम हैं, and by him all things consist. और सब वस्तुएं उन्हीं में स्थिर पहले मैं रहती पढ़ ले हैं। रहा हूं, फिर मैं नबी के कमेंट्स पढ़ूंगा आपके सामने। आमीन। And he is the head of the body, और the church. वो ही
देह अर्थात कलीसिया का सिर है। Did you catch some mystery? क्या आपने कुछ भेद पकड़ा? Are you tired? क्या आप थके हुए हैं? May God quicken your mind to catch something here. काश खुदावन आपके मन को जागृत करे कि आप कुछ पकड़ पाए। Who is the head? ये सिर कौन है? Who is the firstborn of the creation? जो कि पहलौठा है पूरी सृष्टि में। अब सोच के देखिए, ये रहा सर मसीह। He is the creator. वो सृष्टि करता है। By him and through him everything was created. उनके द्वारा और उनके लिए सब कुछ सिरजा गया। And he is before all things. और वो सब बातों में प्रथम है। He is the fullness of Godhead. वो खुदायत्व की परिपूर्णता भी है। This is Christ. ये मसीह है। And now you take this Christ और अब आप इस मसीह को लें and put it over a body, और एक देह पे लगा दें। Amen. which is his church. जो कि उनकी कलीसिया है। Then who is the head of the church? तो फिर कलीसिया का सिर कौन हो गया? Creator. सृष्टिकर्ता। And remember, और याद रखिए, the body is incomplete without the head. जो देह है वो अधूरी है बगैर सिर के। Head and the body is one body. सिर और देह मिलके एक देह बनते हैं। Head is the identification of the body. हालेलुया। जो सिर है वो पहचान है देह का। On the Aadhaar card, यस, आधार कार्ड पे, on the passport, पासपोर्ट पर they don't take the photograph of your this part. वो आपके बाकी के शरीर को की फोटोग्राफ नहीं लेते। They take the portion of this head. वो इस सिर के हिस्से को लेते हैं। This is your ID ये है आपकी आईडी by which you are identified. जिसके द्वारा आप पहचाने जाते हैं। You're not identified by your hands or by your feet or by your stomach. या आप पहचाने नहीं जाते आपके हाथों द्वारा, पैरों द्वारा या पेट के द्वारा। You're identified by your head. आप अपने सिर के द्वारा पहचाने जाते हैं। And now just think, और केवल सोच के देखिए, head was the creator. जो सिर था वो सृष्टि करता था। Head made all things. सिर ने सब कुछ बनाया। Head is the logos. सिर लोगोस है। And now he's the head of the church. और अब वो सिर बन गया कलीसिया का। Then who is the church? तो फिर वो कलीसिया क्या है? Church is the part of logos. कलीसिया हिस्सा है लोगोस का। Church is the creator. कलीसिया है सृष्टिकर्ता। आमेन। This ये is her identification. ये अब उसकी पहचान है। Our headship is gone हमारा सिर चला गया and his headship has come over us. और उनकी जो हेडशिप है, सिर है, वो हमारे ऊपर आ गया। What happened? क्या हुआ? When Rebecca saw Isaac for the first time, जब रिबका ने इसाक को पहली दफा देखा she put a veil on her head. तो उसने अपने मुंह पे एक चादर डाल ली। And Brother Branham explained, और भाई ब्रैनम ने समझाया putting the veil meant, चादर को डालने का मतलब ये था, my headship is gone. अब मेरा सिर खत्म। He is my head. वो मेरे सिर है। So we are not identified by our face. तो अब हम अपने चेहरे के द्वारा नहीं पहचाने जा रहे। We are identified by this face. हम पहचाने जाते हैं इस चेहरे के द्वारा। Just think, सोच के देखिए, this part is cut. ये हिस्सा काट दिया गया Or maybe this part entered. और या तो This कहें, part entered ये वाला हिस्सा घुस गया and disappeared. और गायब हो गया। And this became the visible part. और ये जो है ये अब दिखने वाला हिस्सा बन गया। Body is me, देह तो मैं हूँ but the head is Christ. पर सिर मसीह है। He does the thinking. वो करते हैं सोचने का काम, He does the speaking. वो बोलने का काम करते हैं। And who are you then? तो फिर आप कौन हैं? Now it will not be difficult for you to understand. ये आपके लिए समझने मुश्किल नहीं होगा। But Branham said, अब्राहम ने कहा, all that was in God, वो सब कुछ जो खुदा में था, He poured in Christ. उन्होंने मसीह में उंडेल दिया। And all that was in Christ, और वो सब कुछ जो मसीह में था, He has poured in a bride. उन्होंने एक दुल्हन में उंडेल दिया है। Clearly, Brother Branham said, स्पष्ट रीति से भाई ब्रैनम ने कहा, in Him dwell the fullness of Godhead. उनमें वास करता है खुदा की परिपूर्णता। And clearly He said, और स्पष्ट रीति से उन्होंने कहा, in her, the church, उसमें अर्थात कलीसिया में the fullness of Godhead dwells bodily. जो खुदायत्व की परिपूर्णता है शरीर में वास करती है। Today that Godhead is in the bride. आज वो गॉड है, खुदायत्व दुल्हन में है। That आमेन। head is your identification. जो सिर है, जो चेहरा है,
वो आपकी पहचान है। then who are you? तो फिर आप क्या हैं? You're not even a human now. आप अब यहाँ तक कि एक इंसान भी नहीं रहे, You are a God. आप एक खुदा बन गए। You're an amateur God. आप एक छोटे खुदा बन गए। You're the image of His Son. आप उसके पुत्र की प्रतिमा हैं। You are being transformed आप रूपांतरित हो रहे हैं from the corruption of this world इस दुनिया की सराहट से into the image of Christ मसीह की समानता में, by His power of transformation. उनकी रूपांतरण की शक्ति के द्वारा। Brother, अगर ये thought दिल में आ जाए, then is anything impossible? तो क्या कुछ असंभव होगा? Can I create? क्या मैं सृष्टि कर सकता हूँ? Can you create? क्या आप सृष्टि कर सकते हैं? Can you say to this mountain, क्या आप इस पहाड़ से कह सकते हैं? now we are increasing our tent, अब हम अपने तंबू को बढ़ा रहे हैं, we are increasing our faith हम अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं by virtue of this mystery, इस भेद के कारण से, because that mystery has operated in our lives. क्योंकि वो भेद हमारे जीवनों में कार्यान्वित हुआ है। Now He thinks through us, अब वो हमारे द्वारा सोचते हैं, He works through us. वो हमारे द्वारा काम करते हैं, We are a part of His headship. हम उनकी हेडशिप का हिस्सा हैं। Just go for a minute, sit down please. अब एक मिनट बैठिए। Let's read something from the message. आइए कुछ पढ़ेंगे संदेश से। Yes. जी हाँ। And knoweth it not. और वे नहीं जानते। It's a very good message. ये बहुत बढ़िया संदेश है। Amen. And from and knoweth it not, he starts that riding the trail once more. और उस और नहीं जानते से वो चालू करते हैं सवारी को फिर से कसने वाली बात का। Amen. Someday maybe we'll see it more. किसी दिन हम उसे और अधिक देखेंगे। Yes. जी हाँ। But let me read out as he's reading Colossians. पर आइए हम पढ़ें उस हिस्से को जहां पर वो कुलसियों पढ़ रहे हैं। I am reading from para 113 of and knoweth it not. मैं पढ़ रहा हूँ 113 अनुच्छेद से और वे नहीं जानते वाला संदेश से। Amen. आमीन। These things saith the Amen. ये बातें वो कहता है जो आमीन है। Now he's saying Amen. और वो कह रहे हैं आमीन। Of course he has read a scripture for that he says Amen. बेशक उन्होंने एक आयत पढ़ी है इसलिए वो आमीन कह रहे हैं उसके लिए। The what? अब वो क्या? The firstborn of every creature. हर एक सृष्टि में पहलौठा। Let it be angel. चाहे ये दूत हो, Let it be any what it may be. चाहे कुछ भी कुछ कोई क्यों ना हो, He is the firstborn of every creature. वो सृष्टि में पहलौठा है। For by him were all things created. क्योंकि उसी के द्वारा सारी चीजें सिरजी गई। आज ये घर जाते हुए बोलना, मैं उसके द्वारा सिरजा गया हूं। आमीन। यही मत बोलना, घर जाते टाइम ये बोलना और उसके लिए। आमीन। अगर मैं उसके लिए सिरजा गया हूं का मतलब मेरे द्वारा उनकी महिमा तो होनी ही होनी। आमीन। आमीन। सॉरी, दिस wretched virus I tell you यार, जो चल रहा है आजकल। और whatever it is, brother, we are more than conquerors. Amen. आमीन। जो कुछ भी है भाई, हम जैवन से बढ़कर हैं। Amen. आमीन। By His grace. खुदावन के अनुग्रह से। But let's go on. पर आइए आगे बढ़ेंगे। Let it be angel. चाहे ये दूत हो, Let me any what it may be. चाहे कोई कुछ क्यों ना हो, He is the firstborn of every creature. वो हर एक सृष्टि का पहलौठा है। For by Him were all things created. उसी के द्वारा सारी चीजें सिरजी गईं। All things created सारी चीजें सिरजी गईं that are in heaven जो स्वर्ग में है or in earth, या पृथ्वी पर हैं, visible, invisible. देखी हैं, अनदेखी हैं। क्या कुछ अनदेखी चीजें भी हैं? यस, आमीन। थोड़ा सा दुआ में ज्यादा बढ़िए, अनदेखी चीजें भी दिखना शुरू हो जाएंगी। यस। अभी आपको अनदेखे का अंदाजा है नहीं क्योंकि देखा नहीं। Right here in this room there are angels. ठीक इसी कमरे में दूत हैं। आपने देख लिया, सुना आपने, थोड़ा दुआ में ज्यादा बढ़िए, दिखने भी शुरू हो जाएंगे। Right in this room is that light. ठीक इसी कमरे में वो रोशनी है। मैं थर्सडे को कह रहा था आप अपना समय खुदा के साथ गुजारें, कम से कम 1 घंटा। कुछ बोल रहा था मैं, ये बात, ऐसी बातें बोली थी। अब आप इस प्रैक्टिस को करिए आमीन। और दुआ में बनिए और देखिए, एक दिन दुआ कर रहे होंगे, आसपास खिसपिस होगी, आपको डर लगेगा यहां कौन है। आप कहेंगे ये आसपास कौन था। अचानक आप आंखें खोलेंगे, देखेंगे वहां तो कोई है नहीं, लेकिन वहां कोई था।
कोई था? Amen. जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक अनदेखी दुनिया है, फरिश्ते हैं, खुदा स्वयं, चारों जानदार, जो एक अदृश्य संसार में हैं, जो आपके चारों तरफ घूमते हैं, बैठते हैं। What did Elisha tell Gehazi? Lord, sorry. प्रभु ने एलीशा ने प्रभु से क्या दुआ प्रभु करी? से क्या दुआ करी? Lord, open the eyes of this servant. प्रभु इस दास की आंखें खोल दे। And the mountain was full of chariots of fire. और जो पहाड़ था वो पूरा अग्नि में रथों से घिरा हुआ था। When you sit on your bike, जब आप अपनी बाइक पे बैठते हैं, an angel sits next with you. एक दूत आपके साथ साथ में बैठ These जाता are not my statements. है। ये मेरे वाक्य नहीं है। When you're driving your car, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, an angel sits next to you. एक दूत आपके साथ बैठता है। Amen. These are not my statements. ये मेरे वाक्य नहीं है। These are what the brother Branham said. ये वो है जो भाई ब्रैनम ने कहा। Angels in your car, दूत आपकी गाड़ी में, angels in the office, दूत आपके साथ ऑफिस में, angels in the kitchen, दूत आपके साथ किचन में, angels in the bedroom, दूत आपके साथ बेडरूम में, created by him जो कि उनके द्वारा सिरजे गए and for him. और उनके लिए, एक मिनट, and for him. और उनके लिए। Amen. और जिसके लिए सिरजे गए वो बन गया एक देह का सिर। Yes. Amen. तो ये सारी चीजें किसके लिए बनी? Amen. Hallelujah. वो पिता की महिमा इन सब चीजों की सृष्टि में कहां प्रकट होगी? एक देह में। Amen. एक देह में। मेरे घर में बड़ा टंटा है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। ये इसलिए है कि कोई खुदा की महिमा हो। Amen. कोई महिमा होनी है, हालात ऐसे बने ताकि फिर एक महिमा हो। समझ में आ रही है? घर में कोई क्लेश हुआ है, विश्वासी है, खुदा वो उनको मानने वाला, चलने वाला। अब ये क्लेश का कारण क्या है? कारण ये है कि खुदावन की इसमें कोई महिमा होगी जो खुदावन बाद में प्रकट करेंगे। मेरा क्या काम? भाई दुआ करो और खुदावन से मांगते रहो और खुदावन पे इंतजार करो। और वो दिन बहुत दूर नहीं जब खुदा की महिमा मेरे परिवार में प्रकट होगी। क्या विश्वास करते हैं? कभी भी ये दुआ मत करना, मेरे को ऐसा बेटा आपने क्यों दिया। एक मिनट, क्या बोला? मुझे ऐसा बेटा आपने क्यों दिया? आपने दिया। तो पहली बात तो आप ये मान रहे हैं कि आपने दिया। अब कह क्या रहे हैं उस खुदा से? मुझे ऐसा बेटा आपने क्यों दिया? किसी और को दे देते तो जवाब में कहेगा तुम ही कह रहे हो कि तुमने, कि मैंने दिया। और अगर मैंने दिया तो इसलिए कि मैं तुम्हें मारूं या तुम्हें परेशान कर करके तुम्हें चुसवा के बिल्कुल खत्म कर दूं? अरे नहीं भाई, ये इसलिए दिया कि तुम्हारे जीवन में मेरी एक महिमा प्रकट हो। समझ में आ रही है आपके? इसलिए खुदावन का हर बात में धन्यवाद करो। मुझे ऐसी बेटी क्यों दी? मुझे ऐसी बीबी क्यों दी? मुझे ऐसा पति क्यों दिया? मिट्टी का माधो, समझता नहीं है कुछ, नवाल जैसा है। होते हैं कुछ, होते हैं कुछ, लेकिन ये इसलिए है कि खुदा की महिमा मेरे परिवार में, मेरे जीवन में हो। अरे आप खुदा को जानोगे कैसे? जब तक ऐसे हालात नहीं आएंगे, जब तक ऐसे हालात नहीं, वो खुदावन अपने आप को प्रकट कैसे करे? ताकि उसकी महिमा हो। वो ऐसी चीजें होने देता है। लेकिन याद रखिए, हर वस्तु उसी के द्वारा और उसके लिए सिरजी गई है। मैं आपको अंत फल पहले से बता दूं। अंत फल यह है, तुम्हारी महिमा लिखी हुई है। Hallelujah. Amen. Glory. आप पहले से खुश हो जाओ, क्योंकि अंत फल ये है, तुम्हारी महिमा है।
अब इसमें कितने उतार चढ़ाव आए, ये आए वो आए, हमें इससे क्या मतलब? हमें ये मालूम पहले से पड़ चुका कि हमारा अंत क्या है। आमेन। अब फिर सोच के देखिए, आपका सिर हटा दिया और अपना सिर लगा दिया, तो आप क्या बन गए? चलते फिरते बादल। अब बादल चल रहा है तुम्हारी देह में, अब बादल चल रहा है ब्रदर में, बादल चल रहा है सिस्टर में, बादल बादल से बात कर रहा है, बादलों की फेलोशिप हो रही है, मसीहों की फेलोशिप हो रही है। मसीह बात कर रहा है, मसीह सुन रहा है, मसीह प्रचार कर रहा है, मसीह आमीन बोल रहा है, मसीह हालेलुया बोल रहा है। ओ ब्रदर, all things, सब वस्तुएं, let's say hallelujah, आइए हम let's say हालेलुया बोले, praise the Lord, आइए हम प्रेज लॉर्ड बोले। all things सब वस्तुएं created by him, उनके द्वारा सिरजी गई, for him, उनके लिए सिरजी गई, whether they be dominions, चाहे वो sit प्रधानताएं down हो, please, principalities, प्रधानताएं हो, प्रभुताएं हो, powers, अधिकार हो, visible, invisible, देखे अनदेखे, thrones, सिंहासन, all things were created by him सब वस्तुएं उनके द्वारा सिरजी गई and for him. और उनके लिए सिरजी गई। देखिए ब्रदर, अब ये तो लिखा गया है, इस पे तो कोई कयास है नहीं कि भाई पता नहीं मतलब होगा नहीं होगा, इसमें तो मतलब यही है। All things were created by him सब वस्तु उनके द्वारा सिरजी गई and for him. और उनके लिए सिरजी गई। जिन्होंने टेप सुना वो सुनते नबी कहते हैं ब्रर, यानी उनको ठंड लग रही है, यानी उनको मजा आ गया ये लाइन पढ़ के। ब्रर कहते हैं let it be anything, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, it might be हो सकता है no other being. कोई और जीव नहीं, Notice and he is therefore, और वो इसलिए he is before all things सब वस्तुओं से पहले है and by him all things consist. और सब वस्तुएं उन्हीं में स्थिर रहती हैं। अब इस चीज में सुनिश्चित हो जाइए, भाई आप आराम करो आज घर जाके। Why? क्यों? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, जजेस, न्यायाधीश, मिनिस्टर्स, मंत्री created by him. उनके द्वारा सिरजे गए। अगर वो ना करें तो ये आएंगे नहीं। Remember in the book of Daniel it says, याद रखिए डैनियल की किताब में वो कहते हैं, ancient of days, अति प्राचीन, who raiseth up kingdoms जो कि राज्य को उठाते हैं and bring it down kingdoms. और राज्य को नीचे गिराते हैं। Without him there can be no kingdom. उनके बगैर कोई राज हो नहीं सकता। अरे ब्रदर, असल में मैंने वो हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट पढ़ी, तो जिस जज के यहाँ मेरा केस आएगा उसका नाम ये है। अरे भाई वो तो बड़ा खड़ूस जज है यार, वो तो हमेशा विरोध ही करता है, यही करता है वो। पता नहीं भाई लॉर्ड मेरा केस ऐसे जज के सामने क्यों पहुंच गया, वही तुम्हें बरी करेगा। समझ मारी आपके? एमसीडी किसने बनाई? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। एनडीएमसी किसने बनाई? हम कहेंगे इंसानों ने बनाई, अगर खुदा ना चाहे तो कुछ ना होता। यस। अरे भाई वो जेई आया था, जेई मतलब कोई हुआ, वो जेई आ गया, उसने एक नोटिस चिपका दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो। पिछले हफ्ते मेरे साथ ऐसा केस हुआ, 3 दिन के अंदर खुदा ने सब सॉल्व किया। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और उन्हीं के अधिकारियों ने कहा अब जाओ, जो करना है करो, खुश रहो। अरे वाह यार, ये कारण था मैं थर्सडे लेट क्यों हुआ। थर्सडे को मीटिंग में भाई सब लोग, जो थर्सडे को हमारे ग्रुप की बारी थी, मैं क्यों लेट पहुंचा? क्योंकि मैं इस काम में फंसा था, जो इमरजेंसी थी, मुझे करना था जरूरी। लेकिन खुदा ने बहुत विक्ट्री बख्शी, प्रभु का नाम मुबारक हो और प्रभु के नाम की तारीफ हो। लेकिन अगर थोड़ा और आगे गहराई में सोचें, किसने बनाया ये सब? असल में मेरे कोर्ट में केस था, जज ने मेरे फेवर में फैसला नहीं दिया। आपको लग रहा है, आपको यह लग रहा है कि तुम्हारे फेवर में फैसला नहीं था, लेकिन फैसला तुम्हारे ही फेवर में था। जानबूझ के यह फैसला दिया गया कि तुम अब कहीं और देखो, क्योंकि खुदावन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता खोलेगा।
खुदावन की सिद्ध इच्छा आपके जीवन से पूरी होके रहेगी। आप हैं मेरे साथ? नाउ created by him उनके द्वारा सिरजे गए and for him. और उनके लिए सिरजे गए। Brr, he says. ब्र वो कहते हैं, Let be anything it might be. चाहे कोई कुछ ना हो, क्यों ना No हो, other being. Notice. कोई और जीव नहीं, गौर And करिए। he is therefore. और वो है इसलिए He is before all things. सब बातों में प्रथम है, And by him all things consist. और उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं स्थिर हैं। Whether it be Father, Son, Holy Ghost, चाहे ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा हो, whatever it is, जो कुछ भी है he is before all things. वो सब बातों में प्रथम है। Before all things. सब वस्तुओं में प्रथम, That's in heaven, चाहे वो स्वर्ग में हो, in earth, पृथ्वी पर हो, visible, invisible, देखी अनदेखी or anything. या कुछ भी। This Son of God was before all things. ये खुदा का पुत्र सब वस्तुओं से पहले थे। That right? क्या बात ठीक है? I don't care its thrones, मेरे को कोई परवाह नहीं, चाहे सिंहासन हो, dominions, प्रभुताएं हो, whatever it is. चाहे कुछ भी हो, Heavenly thrones, kingdoms, स्वर्गीय सिंहासन हो, राज्य हो, whatever it might be. जो कुछ भी हो, In the great supernatural realms beyond, उन महान अलौकिक अय्यामों में वहां आगे, in the eternities where it was, अनंताओं में जहां वो थे, whatever it was, जो कुछ भी था, angels, दूत, gods, whatever it was, खुदा, जो कुछ भी थे, he is before all things. वो सबसे पहले है। Amen. Can't you see him? क्या आप उसे देख नहीं पाते? आमीन। He was before all things वो सब वस्तुओं में प्रथम थे and were created by him. He, और उनके द्वारा सिरजे गए, the 17th verse. And he is before all things, और वो सब वस्तुओं में प्रथम है, and by him all things consist. सब वस्तु उन्हीं के द्वारा स्थिर हैं। There's nothing can make it run but him. कोई भी चीज उन सबको चला नहीं सकती बगैर उनके। सब चीजें चल रही हैं आपके द्वारा। आमीन। नहीं, ये लोग हैं जो राष्ट्र चला रहे हैं, ये लोग हैं जो सरकारें चलाते हैं, ऑफिसेज चलाते हैं, वो चला रहे हैं। आमीन। Whether it's God the Father, God the Holy Ghost, whether it's the angels, principalities, powers, dominions, whatever it is, all things run by him. चाहे खुदा बाप हो, चाहे खुदा पवित्र आत्मा हो, चाहे दूत हो, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे वे सामर्थ्य हो, प्रभुताएं हो, जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। All things consist by him. सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थिर हैं। And he is the head of the body. और वो देह के सिर हैं। Identify the head first. पहले सिर को पहचानिए, And now see how that head becomes the head of a body. और अब देखिए कैसे वो सिर जो है एक देह का सिर बन जाता है। The church. कलीसिया का, Who is the beginning? जो की शुरुआत है, Who is the beginning, the firstborn from the dead? जो की शुरुआत है, प्रथम है, जो मरों में से पहला उठा है। That is raised up what he come to redeem. इसका मतलब अर्थात उठाता है उसको जिसको छुड़ाने आया, That in all things he might have the preeminences. कि उन सब वस्तुओं में उसके पास प्राथमिकता मैं हो। धीरे धीरे आ रहा हूं एक पॉइंट पे. Might have preeminence. उसको प्राथमिकता मिले। You know what it means? आप जानते हैं उसका क्या मतलब है? That's over all. वो सब के ऊपर है, He is over all things वो सब वस्तुओं के ऊपर है that was ever created. जो कभी सिरजी गई। Every angel, हर एक दूत, every being, हर एक जीव, everything that there is. हर एक वो चीज जो है, He is over all things. वो सब वस्तुओं के ऊपर है। What creature is this? किस किस्म का जीव ये है? Who can it be? कौन हो सकता है ये Over all जो things. सब के ऊपर हो? We are talking about the Son of God. हम बात करें खुदा के पुत्र के बारे में। And having made peace, और उसने मेल करने के द्वारा, let's see just a minute. Preeminent. प्रथम Verse 19 he comes. 19वीं आयत में वो अब आते उस हैं। 19वीं आयत को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं और आप हिंदी में पढ़ लें. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उनमें सारी परिपूर्णता वास करे। Now this is where we are going to speak something. अब ये वो जगह है जहां पर हम कुछ बोलेंगे। It pleased the Father ये पिता को अच्छा लगा that in him कि उनमें should all the fullness dwell. सारी परिपूर्णता वास करे। Father, it was pleasing to the Father that the fullness of everything dwell in him. ये पिता के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि सब चीजों की परिपूर्णता उनमें वास करे। Para 118. 118 अनुच्छेद। All the fullness of all things, सब परिपूर्णता सब वस्तुओं की, all the fullness of God
खुदा की परिपूर्णता, all the fullness of angels, दूतों की परिपूर्णता, all the fullness of time, समय की परिपूर्णता, all the fullness of eternity, अनंतता की परिपूर्णता, everything dwelt in him. सब कुछ उनमें वास करता है। That's this fellow. ये है वो जन। Notice it. गौर करिए, In him उनमें was the fullness of everything. हर एक चीज की परिपूर्णता थी। Everything finished in him. सब कुछ पूर्ण और समाप्त होता है उनमें। He is the fullness of times. वो समय का के परिपूर्णता है। Now this is where I'm going to read a quote for you now. आमेन। अब ये वो जगह है जहां मैं के कोट पढ़ूंगा। I'm turning to the seventh seal. मैं निकाल रहा हूं सातवीं मोहर। आमेन। And now I'm going to read a quote for you. अब मैं कोट आपके लिए पढ़ूंगा। When the prophet starts talking about this seventh seal, जब नबी बात करना चालू करते हैं सातवीं मोहर के बारे में, para 231, 231 अनुच्छेद, we must remember हमें याद रखना चाहिए that this seventh seal is the end of time of all things. कि सातवीं मोहर जो है वो समय का अंत है हर चीज के लिए। That's right. ये बात ठीक है। The things written in the seventh seal book, वो चीजें जो लिखी गई है सात मोहरों वाली पुस्तक में, sealed up of the plan of redemption मोहर बंदित उस छुटकारे की योजना का, from before the foundation of the world, जगत की नींव रखने से पहले से it every bit ends. उसका हर एक हिस्सा खत्म हो जाता है। It is the end. वो अंत है। It is the end of the struggling world. जद्दोजहद करने वाली संसार का अंत है। Is the end of struggling nature. जद्दोजहद करने वाली प्रकृति का अंत है। Is the end of everything. वो हर एक चीज का अंत है। In there उसमें is the end of the trumpets. तुरहियों का अंत है। Is the end of the vials. कटोरों का अंत है। Is the end of the earth. पृथ्वी का अंत है। It's even the end of time. यहाँ तक कि ये इसमें समय का भी अंत है। Time runs out. समय खत्म हो जाता है। The Bible said so. बाइबल ये कहती है। Matthew the 7th chapter, I mean Revelation the 7th chapter, 10th chapter, and a 1 to the 7th verse. मत्ती 7 मेरा मतलब प्रकाश वाक्य 7 10वां अध्याय और उसकी पहले 7वीं आयत तक Time runs out. समय समाप्त हो जाता The है। angel said, दूत ने कहा time will be no more. अब तो समय बाकी ना रहेगा। When that, in the days of this great thing to happen, जब उस दिन में जब वो महान चीज घटेगी, notice carefully, गौर करिए ध्यानपूर्वक, everything runs out in this time. सब कुछ खत्म हो जाता है इस समय में। The end of the, अंत है at the end of this seventh seal. उस अंत पे सातवीं मोहर के। Notice, गौर करिए, is the end of the church age. ये कलीसिया काल का अंत है। Is that the end of the seventh seal? ये सातवीं मोहर का अंत है। Is the end of the trumpets? ये तुरहियों का अंत Is the है। end of the vials? ये कटोरों का अंत है। And even end the ushering in of the millennium. यहाँ तक कि मिलेनियम के प्रवेश का भी अंत है। That's on the seventh seal. ये है सातवीं मोहर पर। Then what is the seventh seal? तो वे सातवीं मोहर क्या है? Fullness of everything. हर एक चीज की परिपूर्णता। But just now we read, पर अभी तो हमने पढ़ा, in him dwelt all the fullness. उनमें वास करती है सारी परिपूर्णता। Then what is it, brother? तो फिर ये क्या है भाई? That seventh seal was Christ. वो सातवीं मोहर मसीह थे, Where Christ is presented. जहाँ पर मसीह प्रस्तुत किए जा रहे हैं। It's the fullness of time of that thing. तो वो समय होता है उस चीज के समय के परिपूर्णता का। Then what is the coming of Christ? तो फिर मसीह की आमद क्या है? The presentation of the fullness. परिपूर्णता का प्रस्तुतिकरण। When the coming takes place, जब आमद होती है, that previous dispensation वो पिछला जो संचालन है, काल comes है, to an end. वो एक अंत पे आ जाता है। It comes to its fullness. वो अपनी परिपूर्णता पर आ जाता Then है। where is that seventh seal? तो फिर वो सातवीं मोहर का है। That seventh seal is a man. तो फिर सातवीं मोहर एक आदमी है And that man has to be identified. और जरूरी है वो आदमी पहचाना जाए। In some lives, कुछ जीवनों में when that life is identified in your life, जब वो जीवन आपके जीवन में पहचाना जाता है, it's fullness of time of this body. ये परिपूर्णता का समय है इस देह का। Your fullness आपकी परिपूर्णता is in him. उनमें है। Your perfection आमेन। आपकी सिद्धता is in him. उनमें है। Your glorified state आपकी महिमा युक्त अवस्था is in him. उनमें है। And he came और वो आए in a what body? एक वचन रूपी देह में। What came in 1963? जो कि क्या है 1963 में? Not the flesh body, शरीर वाली देह नहीं, but Colossians 1. पर कुलसियों एक। हालेलुया। Colossians 1 कुलसियों एक आया, came down नीचे उतर के as the
mighty angel, बलि स्वर्गदूत के रूप में, and in him dwelled all the fullness. और उनमें वास करती है सारी परिपूर्णता, And that is the seventh seal, और ये है सातवीं मोहर। the fullness of time of all things समय की परिपूर्णता सब वस्तुओं की is in him, उनमें है, and he has come. और वो आ चुके हैं। So it's time for the end of certain things. तो फिर ये समय आ गया कुछ चीजों का खास अंत हो। Now remember, अब याद रखिए, in Ephesians 1 it says इफ्सियों 1 में वो कहते हैं that in the dispensation of the fullness of times, कि समय के संचालन की परिपूर्णता के समय में he might gather all things, वो सब चीजों को इकट्ठा करे, all things in earth सारी वस्तुएं पृथ्वी पर and all in heaven. और सब वस्तुएं स्वर्ग में। What are those things? वो चीजें क्या है? Some believers, कुछ विश्वासी, some on earth, कुछ पृथ्वी पर हैं, some in heaven, कुछ स्वर्ग में हैं, all in Christ. सबको मसीह में। So what happened in 63? तो क्या हुआ 1963 में? The fullness came. परिपूर्णता आ गई। That's why Paul said, इसे पौलुस कहते when हैं, that perfect is come, जब वो सब सिद्ध आएगा, all these things in part जो सारी चीजें अधूरी है shall be done away with, वो मिट जाएंगी, because the perfect light has come. क्योंकि सिद्ध रोशनी आ गई, The Shekinah glory has come. शकीना महिमा आ गई, The holiest has descended. परम पवित्र नीचे उतर के आ चुका The है, new Jerusalem has come. नया यरूशलेम नीचे आ गया, King Theophany has come. राजा थियोफनी नीचे आ गई, The fullness of all things सब वस्तुओं की परिपूर्णता has descended, नीचे उतर के आई है, of which you are a part. जिसका आप हिस्सा है। And mind you, और गौर करिए, through this message, इस संदेश के द्वारा that fullness is approaching you. वो परिपूर्णता अब आपके पास आ रही है। When it's approaching you, जब वो आपके पास आ रही है, you're moving from part to fullness. आप अधूरे अंश से बढ़ रहे हैं परिपूर्णता की तरफ। What it says in Colossians, क्या कहता है वो कुलसियों में? in him dwells the fullness of everything, उनमें वास करती है सब चीजों की परिपूर्णता, and he is the head of the church. और वो कलीसिया का सिर है। It's a prophecy. ये एक नबूवत है When the head will come, कि जब सर आएगा, the head of the body, देह का सिर, when seven thunders utter their voices, जब 7 गर्जन के शब्द ने वह शब्दों को उच्चारित Brother Branham करेंगे। said, भाई ब्रह्म ने कहा, is it introducing the capstone? क्या ये चोटी के पत्थर का परिचय कर रहा है? Is it bringing the headship? क्या ये हेडशिप को लेके आता है? Amen. आमीन। Colossians 1, कुलसियों में by seven thunders, वो 7 गर्जन के शब्द bringing the headship उस हेडशिप को ला रहे हैं, over the body, देह के ऊपर, over the pyramid, त्रिभुज के ऊपर, to make her perfect, ताकि उसे सिद्धता दें, to make her a divine, bring her a part of the deity. ताकि उसे खुदायत का हिस्सा बना दे। All that was in Christ, जो कुछ मसीह में था, poured in the bride. दुल्हन में उंडेल दिया गया। That mystery, वो भेद, that attributes, वो गुण poured in a bride दुल्हन में उंडेल दिए गए by virtue of this message. इस संदेश के माध्यम You see, से। it's not just reading a message, आप पाएंगे केवल संदेश का पढ़ना नहीं it's है, drinking God, ये खुदा को पीना है। आमीन। it's eating God. ये खुदा को खाना है। A part of God is put in you. खुदा का एक हिस्सा आपके अंदर डाल दिया When जाता you है। partake from that kosher, जब आप उस रोटी में से भाग लेते when हैं, you drink from that cup, जब आप उस प्याले में शरीक होते this हैं, is my body, ये मेरी देह है, this is my blood, ये मेरा लहू है, this is the New Testament in ये my blood. नया एतनामा है मेरे लहू में। Then you don't drink the entire cup, फिर आप पूरा प्याला नहीं पी लेते, but you take a part of it. पर आप केवल उसका एक अंश लेते हैं। Why? क्यों? To show this, ताकि ये दिखाए you are a part of that fullness. कि आप उस परिपूर्णता का हिस्सा हैं। Now a part of God आप खुदा का हिस्सा हैं। has went in your body, एक खुदा का हिस्सा अब आपके शरीर में चला and he गया, that eats my flesh और वो जो मेरा मांस खाता and है drinks my blood और मेरा लहू पीता है, has eternal life, उसके पास अनंत जीवन है, and I'll raise him in the last day. और मैं उसे अंत के दिन में फिर से जिला उठाऊंगा। आमीन। हालेलुया। My precious brother, मेरे बहुमूल्य भाई, oh, if I had a voice ओ अगर मेरे पास आवाज होती to tell you, कि आपको बताऊं, seventh seal is the coming of the Lord, 7वीं मोहर प्रभु की आमद है, it's a man, ये एक आदमी है, and that man is here. और वो आदमी यहाँ है।
That King Theophany is वो here. राजा थियोफनी यहाँ है, That fullness of times is here. वो समय की परिपूर्णता यहाँ है, In him dwells the fullness of everything. उनमें वास करती है सब चीजों की परिपूर्णता। And he is walking on 2 feet on this earth today. और वो 2 पैरों पे आज चल रहे हैं इस पृथ्वी पर, In his theophany form. अपने थियोफनी के रूप In में, his word form. अपने वचन के रूप में, To be identified with some believers. ताकि कुछ विश्वासियों के साथ अपनी पहचान दे। That 7th seal. वो 7वीं मोहर, That man वो मनुष्य identified with some people. जो पहचान देते हैं किसी कुछ लोगों के साथ, In other words, दूसरे शब्दों में that fullness वो परिपूर्णता coming in some lives. कुछ जीवनों में घुस रही है। आमेन, That's हालेलुया। coming in some lives कुछ जीवनों में आ रही है। is the end of their old system. ये है उनके पुराने तंत्र का, प्रणाली का अंत। Is the end of that flesh system. उस शरीर के जो तंत्र है, सिस्टम है, उनका अंत है। The Lord himself shall descend. प्रभु स्वयं नीचे उतरेंगे। This I say unto you, ये मैं तुमसे कहता हूँ, this flesh and blood ये मांस और लहू cannot inherit the kingdom of God. ये खुदा के राज के भागी नहीं हो सकते। Behold, I show you a mystery. देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता We हूँ, shall not all sleep, हम सब तो नहीं सोएंगे, but we shall all be changed हम सब बदल जाएंगे in the twinkling of an eye पलक झपकते ही, at the last trump. पिछली तुरी के फूके जाने And we are पर, living at the time और हम उस समय में रह रहे हैं, of the last trump. उस अंतिम तुरई के। For this mortal इस पर अनाहार को, shall put on incorruption, अमरता को पहनना है, which is your theophany. जो कि आपकी थियोफनी है। And then it shall be said, और तब ये कहा जाएगा, O death, हे मृत्यु, where is thy sting? तेरा डंक कहाँ गया? O grave, हे कब्र, where is thy victory? तेरी जीत कहाँ गई? Are you catching this mystery? क्या आप इस भेद को पकड़ पा रहे हैं? What's happening? क्या हो रहा है? The fullness has arrived. परिपूर्णता आ चुकी है। Colossians 1 has arrived कुलसियों 1 आ चुका है, to become your head. ताकि आपका सिर बन जाए। अब बताइए, कोई चीज असंभव है? नो, Is there any goal impossible? क्या आप कोई लक्ष्य असंभव होगा? There is nothing impossible whose head is Christ. कोई भी चीज असंभव नहीं उसके लिए जिसका सिर मसीह है। You are a supernatural, invincible army. आप एक अलौकिक अजीत सेना है। No power of darkness can reign over you. कोई अंधकार की शक्ति आप पे शासन नहीं कर सकती। Your enemy is defeated. आपका दुश्मन हराया जा चुका है। Your enemy is dead. आपका दुश्मन मारा जा चुका है, Whatever it might be. चाहे कोई कुछ क्यों ना हो। आमेन। Remember this one thing. एक बात को याद रखिए, But you need to come in contact with this Christ. जरूरी है कि आप इस मसीह के संपर्क में आए। For that you just need to pray. उसके लिए केवल आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। याद रखिए, प्रभु भोज की मेज में भागी होना एक पुराने जीवन के साथ एक गुनाह है। वैसे तो हम माफी मांगते हैं हर एक की तरफ से, लेकिन आप प्रभु भोज में भाग भी होते रहें, अश्लील जीवन जीते रहें, अफेयर्स करें, अपनी बीवी को गालियां दें। समझ मारी है? आप अफेयर्स करें, अपनी बीवी को गालियां दें, या बीवी अपने पति को गाली दे और दूसरों के साथ अफेयर्स जताए, और यहां बिल्कुल मासूम बन के आ जाए बिलीवर मेज में भागीदार होने के लिए। कौन सा बिलीवर? लेकिन मैं आपको ये एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं, ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपका पुराना जीवन था जो शायद अभी भी कुछ लोगों का है। यह है गंदी खबर। कुछ लोगों का पुराना जीवन मरा नहीं। मैं जानता हूं, नहीं मरा, नहीं मरा। आप अपनी हीरोपंती से बाज नहीं आते। आप हैं हीरो। बेटे, खुदा के सामने बनो जीरो। अगर कोई शुरुआत अपनी जिंदगी में चाहते हो तो जीरो बनना पड़ेगा, हीरोपंती से। और अगर हीरोपंती चलाओगे तो किसी बस की टायर में आके नीचे एक दिन अलविदा कह जाओगे, और अलविदा क्या कहोगे, सीधा नरक पहुंच जाओगे जहां के बने थे। तब यही प्रूव होगा कि वहीं के लिए बने थे। इससे पहले कि ऐसी घटना घटे, खुदावन से रहम मांगो। हे प्रभु, मेरी जिंदगी पर रहम कर।
मैं अपने पुराने जीवन से मन फिराता हूं, और तब आप नोटिस करेंगे कैसे ये प्रेम आपके घर चलता हुआ आएगा, और कैसे उस पुराने सांप को, पुराने नेचर को खत्म कर देगा। वो सारा रोम बेबीलोन जो आपके अंदर है, ये उसका अंत है, और यह आपको उस बेबीलोन से निकाल लेगा और अपना बेटा और बेटी बनाएगा। आपकी समझ में आ रही है? This seventh seal which has come here ये सातवीं मोहर जो यहाँ आई है, is a man. ये एक मनुष्य है, एक He is व्यक्ति a है, person, वो एक शख्सियत है, and he's waiting to be identified और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पहचान हो with some lives, कुछ जीवनों के साथ, and once identified in those lives और एक दफा उन जीवनों के साथ पहचान हो जाती है through the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा, you are transformed into his image. आप उनकी समानता में रूपांतरित हो जाते हैं। God bless you. I'll not speak much, खुदावन आपको बरकत दे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, and I'll just say this. और मैं यही कहूंगा, Go back home and read Colossians घर जाइए और कुलसियों पढ़िए and meditate on these things, और इन बातों पे मनन करिए। and may God open more for you काश खुदावन आपके लिए और अधिक खोले in the days to come. आने वाले दिनों में। So seventh seal is a man. सातवीं मोहर जो है एक व्यक्ति है, आदमी।